میری 21 سالہ بیٹی جب بھی کالج سے واپس آتی پیٹ پکڑ کر روتی، کہتی پیٹ میں درد ہے۔ میں اگر ڈاکٹر کے چلنے کا کہتی تو منع کر دیتی۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اپنی دائی دوست کو بلایا۔ میری بیٹی کا چیک اپ کر کے وہ اپنا سر پکڑ گئی اور بولی، اس کی شادی آج ہی میرے 10 سالہ بیٹے سے کر دو ورنہ یہ مر جائے گی۔ میں ڈر گئی اور اس کی شادی کر دی، اور حیرت ہوئی جب واقعی وہ صحیح ہونے لگے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور رات میں نے بیٹی کے کمرے میں جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ 10 سالہ بچہ میرا نام جویریہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں۔ ان کی تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر زندگی دیں، ان کی اولاد ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں، پر کبھی کبھی قسمت دھوکہ دے جاتی ہے۔ نیک ماں باپ کی اولاد بھی کھوٹا سکہ نکل آتی ہے۔ میری بیٹی کی کہانی میرے ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا تھا سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا، پر ایسا نہیں تھا۔ ماضی کبھی نہ کبھی ہمارے آگے ضرور آ جاتا ہے۔ 25 سال بعد میرا ماضی میرے سامنے آیا اور تب میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی، میرے اعتبار کو توڑ ڈالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں جوان تھی، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، پر جب کالج جانا شروع کیا تو میری بہن کا لہجہ بدل گیا۔ وہ ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی۔ جب کالج میں میری دوستوں نے بتایا کہ تمہاری بہن کے پاس موبائل ہے، وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، میں نے باتوں کا یقین نہیں کیا۔ پر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، میری بہن رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پر چلی جاتی۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، اور جب میں اس سے پوچھتی تو وہ کہتی ایسا کچھ نہیں، بس کالج ختم ہونے والا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے، میری جان چھوٹ جائے گی پڑھائی سے۔ میں نے کہا تم تو مزید آگے پڑھنا چاہتی ہو، تمہارے تو بہت سے خواب تھے۔ پر وہ کہنے لگی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور خواب بدلتے رہتے ہیں، اور ایک دن جیسے امی میری الماری کی صفائی کرنے لگی تو موبائل وہاں سے نیچے گرا، اور امی مجھے پوچھنے لگی کہ کس کا موبائل ہے۔ میں نے کہا امی میرا موبائل نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تو میری بہن نے کہا کہ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی کا موبائل ہے، میں نے خود اس کے پاس دیکھا تھا، اور امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میرے سامنے وہ موبائل توڑ دیا تھا۔ میری بہن کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ موبائل میری چیزوں میں چھپا کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کبھی مجھے شک ہو تو میں اسی کی چیزوں میں تلاش کروں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ امی نے میرا کالج جانا بند کر دیا، مجھ پر سختی کرنے لگی۔ میں لاکھ کوشش کرتی ان کو یقین دلانے کی، پر وہ مانتی نہیں تھی۔ ابا نے جب میری پڑھائی کا پوچھا تو امی نے کہا کہ ویسے ہی اس کے ایگزام ہونے والے ہیں تو گھر رہ کر تیاری کر رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک دن بابا نے کہا بھائی صاحب اب چاہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کر دیں۔ میری بڑی بہن کا رشتہ طیبہ کے گھر طے تھا، اس میں میری بہن کی مرضی بھی شامل تھی، پر اب وہ میرے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی۔ امی نے بہت سمجھایا پر آپ ہی نہیں مانی، اور ایسے امی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہی تھی، اور میں کالج جانے لگی۔ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، اور ایک دن آپی نے خود ابا کو بول دیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کسی صورت طیبہ کے گھر شادی نہیں کریں گی۔ ان کے پاس ہے ہی کیا، 2 وقت کا کھانا تو وہ پورا نہیں کر سکتے، میری ضرورتوں کو کہاں سے پورا کریں گے۔ ابا نے کہا وہ میرا بھائی ہے، اور ویسے بھی ادیان کی نوکری ہونے والی ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تم دونوں بہنوں کا ہی تو ہے، میں نے قبر میں لے کر نہیں جانا، اور اب دوبارہ تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گا۔ پر میری بہن نے امی سے کہا اگر ایسا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، پر کسی صورت ادیان سے شادی نہیں کروں گی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے، اور طیبہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ میری بہن اپنی ضد پر قائم تھی، اور ایک دن کہنے لگی ادیان سے کچھ بات کرنے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا جویریہ کو ساتھ لے جاؤ، پر وہ کہنے لگی آخر کب تک آپ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گی، میں گھر سے بھاگ نہیں رہی ہوں۔ یہ کہتے میری بہن چلی گئی، اور شام کو بہت خوش گھر لوٹی تھی۔ امی بھی اسے دیکھ کر خوش تھی کہ شاید ادیان نے اسے منا لیا ہوگا، وہ بھی تو اسے پسند کرتا ہے۔ پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی وہ لڑکی جسے ساری عمر لاڈ پیار سے پالا تھا، جس پر کبھی کوئی سختی نہیں کی، وہ ان کی عزت خاک میں ملانے جا رہی ہے۔
बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं, इनकी इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देती हैं। पर न जाने कुछ बेटियां ऐसी क्यों होती हैं जो एक पराये शख्स की मोहब्बत की खातिर इन्हीं माँ बाप की इज्जत को रोल देती हैं, जिन्होंने अपनी सारी उम्र अपनी बेटियों की परवरिश पर लगा दी होती है। हमें लगा था कि मेरी बहन अद्यान अपने मंगेतर से मिल रही है। अब्बा को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि तब इस चीज़ को बुरा समझा जाता था। जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैंने अपनी बहन को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा, मुझे लगा वो अद्यान भाई हैं। पर जब घर पहुंची तो ताया अब्बा और भाई वहाँ पर मौजूद थे, और अम्मी भी समझ चुकी थी कि उनकी बेटी उनकी आंखों में धूल झोंकती रही। अम्मी ने बताया कि वो अपनी दोस्त की तरफ है। मेरी बहन के पास मोबाइल था और इसने हमें कहा था कि वो मोबाइल इसके मंगेतर ने दिया है, जबकि इस दिन इसके घर ना होने की वजह से मुझे लग रहा था कि वो कभी सच नहीं बोल सकती। वो जो कर रही थी बहुत गलत था। मेरा कज़न पढ़ा लिखा था और जल्द उसे मुलाजमत मिलने वाली थी। बस ताया अब्बा के हालात कुछ अच्छे नहीं थे और बीमारी ने उनको मज़ीद बूढ़ा कर दिया था। ताया अब्बा शादी की तारीख लेने आए थे और 2 माह बाद की तारीख तय पाई, और जैसे मेरी बहन घर आई सबको देखकर हैरान हुई थी। ताई जान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था और वो माजरत करती हुई अपने कमरे में चली गई, और अम्मा ने कहा शर्मा गई होगी। मैंने जाकर अपनी बहन को मिठाई दी तो उसने प्लेट फेंक दी। कहने लगी, मुझसे पूछे बिना तुम सब ने कैसे मेरी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। मुझे किसी सूरत भी इस शख्स से शादी नहीं करनी, तो क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा कि इतनी खुदगर्ज मत बनो, कमी क्या है इसमें। तो उसने मुझसे कहा ठीक है, फिर तुम इससे शादी कर लो और मेरी जान छोड़ो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उससे कहा अब्बा को बहुत मान है तुम पर, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, यहाँ तक कि अब्बा तुम्हारी ज़रा सी फरमाइश को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे मत करो हम सबके साथ। पर वो नहीं मानी, यहाँ तक कि अम्मा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और वो पैर पटकती हुई कमरे से चली गई और सीधा अब्बा को जाकर कह दिया जवेरिया की शादी वहाँ कर दें, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और अब्बा ने उसे थप्पड़ मारा था। गुस्से के बायस अब्बा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। अम्मा ने कहा बच्ची है, जब शादी होगी खुद ठीक हो जाएगी। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सब तो ऐसी उम्र में हो जाता है, आप परेशान मत हो। पर अब्बा ने कहा कि मुझे इसके लहजे से लग रहा है कि वो मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। अपनी बेटी को बता दो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे अपने मर्ज़ी से शादी करनी है तो मेरी भी एक शर्त है, इस लड़के को बुलवाए, मैं उसी दिन इसका निकाह करके उसे इस घर से हमेशा के लिए रुखसत कर दूँगा, और उसके बाद इसका हमसे ना हमारा उससे कोई ताल्लुक़ होगा। और इस दिन तुम भी भूल जाना, बस इतना याद रखना हमारी एक बेटी है। और अम्मी फूट फूट कर रो दी थी। जब आपी को ये बात पता चली तो उसे ज़रा दुख नहीं हुआ था, बल्कि बहुत खुश हुई थी। कहती बस एक बार शादी हो जाए, फिर अब्बा को मैं खुद मना लूँगी। अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे। वो हवाओं में उड़ रही थी जब इस लड़के को आपी कॉल करने लगी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब्बा अलग परेशान थे, अब ताया अब्बू को क्या कहकर इनकार करेंगे। शादी के दिन करीब आ रहे थे, पर वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था और आपी बीमार रहने लगी। और अद्यान को भी पता चल गया और वो आपी से बात करने आया था, पर मेरी बहन ने उसे बहुत जलील किया। उससे कहा तुम्हारी औकात क्या है। तब अद्यान जो मंगेतर था और ताया का बेटा भी था, उसने कहा जब मैं पहली बार तुम्हारी रजामंदी जानने के लिए आया तब तुमने हाँ क्यों की। 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी बदल गई हो। मुझे तब इनकार कर देती, मैं कभी ये रिश्ता न करता। पर अब शादी की तारीख रखी जा चुकी है, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मैं किसी सूरत अब पीछे नहीं हट सकता। बात अब इज्जत पर आ चुकी है। और मेरी बहन ने कहा तुमने जो करना है कर लो, मैं ये शादी नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप इस लड़के के घर जहाँ वो रहता था वहाँ भी गई, पर किसी से कुछ पता नहीं चल सका। और ऐसे आप ही को अब्बा का फ़ैसला मानना पड़ा, क्योंकि अब्बा ने कहा अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता इज्जत के साथ मांगता है तो मैं उसी दिन रुखसत कर दूंगी। पर वो नहीं आया था और घर में मेहमान आने लग गए थे। आपी का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा ने समझाया माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते, वो हमेशा अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं।
मेरा ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर वो लड़का सच्चा होता तो उसी दिन आ जाता जब उसे तुम्हारे रिश्ते का पता चला था, पर वो नहीं आया। वो धोखेबाज था। पर कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, वो सिर्फ अपना सोचती है। मेरी बहन ने तो शुरू से बस अपना ही सोचा था। इसकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। और आप ही की शादी से 1 माह पहले मेरा रिश्ता आया। अब्बा बहुत खुश थे। अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और चंद लोगों की मौजूदगी में वो लोग मुझे अंगूठी पहना गए। ये सब अचानक हुआ था और मेरी खाला ने कहा था कि वो लोग जानने वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना अचानक होगा। अम्मा ने बताया वो तो काफ़ी माह से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। लड़के ने तुम्हें देखा भी हुआ है। तुम्हारी खाला कह रही थी कि लड़का बहुत प्यारा है और खाते पीते लोग हैं। मेरी बेटी बहुत नसीबों वाली है और मैं ये जानकर इस लड़के ने जिससे मंगी हुई है मुझे देखा हुआ है और इसीलिए रिश्ता भेजा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था और जब अम्मा की बात मेरी बहन ने सुन ली तो उसने कहा मैं तो आपकी सौतेली बेटी थी जो मुझे एक बेरोजगार शख्स के साथ बांधने जा रही हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो सवाए गुर्बत के मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। अम्मा ने कहा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम देखना अद्यान को जल्दी नौकरी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तुम नाशुक्री मत किया करो। फिर एक दिन मेरी नंद आई और इस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले शौहर से बात की थी और ये पहली और आखिरी बात थी। ये जाने बगैर बदकिस्मती इस घर का रुख कर चुकी है। मेरी बहन की शादी का दिन आ चुका था पर वो सोगवार की हालत में थी। मेरी खाला की बेटी ने पूछा क्या सवेरा तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की जा रही हो। और अम्मा बात को टालते हुए उसे बाहर ले गई थी क्योंकि बारात आ चुकी थी। पर तब कोई ये नहीं जानता था कि कुछ देर में ये घर मातम का घर बन जाएगा। जैसे बारात आई सब बारात देखने लगे। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहन की शादी थी पर जैसे निकाह का वक्त आया तो मेरी बहन अंदर कमरे में नहीं थी। वो घर से भाग चुकी थी और जाते वक्त उसने एक खत छोड़ा जिस पर लिखा था कि आप लोगों की रस्म और रिवाज की सूली मैं नहीं चढ़ सकती और ना आप लोगों की खातिर मैं अपने अरमानों का खून कर सकती हूँ। और अब्बा ज़मीन पर गिर गए थे। ताया अब्बा को, इनकी फैमिली को सबको पता चल चुका था और हॉल में बैठे मेहमान दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पर वो अपने बाप की दहलीज को पार करके चली गई। अब्बा ने कहा क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में, कहाँ मुझसे गलती हुई जो आज मेरी बेटी अपने बाप की इज्जत को खाक में मिला कर चली गई। मैं बाहर लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबको क्या कहूँगा। मेरी बेटी किसके साथ ऐन निकाह के वक्त भाग गई। तब ताई जान ने कहा भाई साहब आप फिक्र मत करें, जवेरिया भी हमारी बेटी है। अगर एक बेटी हमारे घर की बहू ना बन सकी तो क्या हुआ, जवेरिया में क्या कमी है। और अब्बा ने मेरी तरफ देखा था। अब्बा की आंखों में एक उम्मीद थी, एक तकलीफ थी और मैं अपनी माँ के गले लग के रोने लगी। मैंने कहा अब्बा ऐसा मत करें। और अब्बा ने भी ताया अब्बा से कहा कि भाई साहब जवेरिया की मंगनी हो चुकी है, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा। ताया अब्बा ने कहा मंगनी हुई थी, कौन सा निकाह हुआ था, इन लोगों से कह देना जिनकी अमानत थी वो लोग जवेरिया को ले गए। और ऐसे अचानक मेरी शादी अदयान से हो गई जिसको कभी इस नज़र से देखा नहीं था। अचानक से वो मेरा शौहर बन गया। हर बार ऐसा क्यों होता है, माँ बाप अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी दूसरी बेटी के ख्वाबों की, उनके अरमानों की कुर्बानी दे डालते हैं। मेरी बहन के किए की सज़ा मुझे मिली थी और वो खुद न जाने कहाँ गई थी, किसी ने उसकी खबर नहीं ली। अब्बा ने कहा आज से वो मेरे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर के किसी भी फर्द का इस लड़की के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा और मैं अपने माँ बाप की दुआओं में रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी बार बार इन्हीं लोगों का इम्तिहान लेती है जो पहले टूट चुके होंगे। पर अम्मा ने कहा था अपने अब्बा की अच्छी बेटी बनकर सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को निभाना, क्योंकि अब यही मेरा घर है। पर मैं सोचती थी एक औरत का कभी कोई अपना घर नहीं होता, वो तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पे ये कहा जाता है कि कल को तुम अपने घर की हो जाओगी, और जब शादी होती है तो सास कहती थी कभी इस घर को अपना घर न समझना, क्योंकि तुमसे शादी मेरे बेटे ने मजबूरी में की है
और ऐसा मेरी सास ने बोला था। मेरा शौहर जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था, वो बहुत मोहब्बत करता था उससे, बहुत रोया था। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर काश जब आप ही मान नहीं रही थी सब रुक जाते। मेरे शौहर ने कहा था कि वो मुझे कबूल नहीं कर सकता, बेजोड़ शादियां कभी कामयाब नहीं होती, मुझे अभी वक्त चाहिए। और जैसे अपने मैके जाती तो अम्मा नसीहतों का अंबार लगा देती। अब्बा की मोहब्बत मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब्बा ने कहा, जो लड़कियां अपने शौहरों का दिल जीतना जानती हो वो कभी हारती नहीं हैं। तुम अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब इसका दिल जीत जाओगी वो अपना माजी भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, पर अद्यान मेरा भतीजा है, मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। और तुम देखना एक वक्त आएगा तुम खुद मुझे कहोगी, बाबा अद्यान को आपने मेरे लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। और मैं अब्बा के गले लगकर बेआवाज़ रो दी थी। अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करने लगी। ताया अब्बा बहुत अच्छे थे, पर ताई और उनकी बेटियां मुझे नीचा दिखाती। ऐसा नहीं था मैं खूबसूरत नहीं थी, बस ताई को गुस्सा था मेरी बहन पर और वो मुझ पर निकालती रहती। जिस दिन मेरे शौहर को नौकरी मिली और कंपनी की तरफ से घर भी, ताया अब्बा ने कहा, जुवेरिया के कदम बहुत मुबारक है इस घर के लिए। पर सब ने हंसी में बात उड़ा दी थी, पर मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। वक्त गुजरता गया, मैं बहुत कोशिश करती अपने शौहर का दिल जीतने की, पर वो हर बार मुझे धुतकार देता। वो कहता, तुम ये सब करके कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। मैं कोई मौका देख रहा हूँ, जैसे मौका मिला चचा जान से बात करूँगा और इस शादी को ख़त्म कर दूँगा। और इसी दिन अम्मा की कॉल आई थी कि अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो, पर ताया अब्बा ने कहा था कि बेटी होश करो, संभालो खुद को, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। और अब्बा की मैयत घर पड़ी थी और लोग बातें कर रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई थी। बाप कब तक ये बोझ सह पाता। कितने अजीब लोग होते हैं, ये बजाय मरने वाले की ताज़ियत के लिए उसकी मट्टी की खाक उड़ाने लग जाते हैं। अम्मा की तबीयत संभल नहीं रही थी और ताया अब्बा के मशवरे से मैं अम्मा की इद्दत पूरी होते उनको अपने साथ ले आई थी। मेरी अम्मा आना नहीं चाहती थी, पर जो उनकी हालत थी मैं अपनी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी शादी को 4 माह हो चुके थे जब अचानक से मेरे नंबर पर फ़ोन आने लगा और कुछ तस्वीर भी जिनको किसी लड़के के साथ जोड़ा था। और मैं हैरान थी कि मेरी ये तस्वीर घर से बाहर कैसे चली गईं। और वो फ़ोन करता, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर एक बात ने हैरान किया था, ये वही शख्स था जिसकी मुझसे मंगनी हुई थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि ऐसे लालची शख्स से बच गए। पर मुझे डर लगता था कहीं ये सब मेरे शौहर को पता न चल जाए। मैं कई दिन फ़ोन बंद रखती, पर वो मेरे शौहर के नंबर पर फ़ोन करने लगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो रहा था, पर ऐसा लगता अगर इस शख्स ने वो तस्वीर जिनको गलत रंग दिया गया था वो दे दी तो कहीं मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और वो पता नहीं क्यों सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे तुम्हें एक बात बतानी थी, चचा जान की मौत की वजह से तुम्हें बता नहीं सका। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी। उसने कहा तुम्हारी जिससे मंगनी हुई थी वो शख्स वही था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर से भागे थे। वो अच्छा लड़का नहीं था, पर जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, क्योंकि इसके पास तुम्हारी तस्वीर है और वो सब तस्वीर तुम्हारी बहन उसे देती रही और तुम्हारे नाम से उसने बात करना शुरू की थी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया कि वो कौन है। पर इस लड़के ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवेरा हो या जवेरिया, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और इसने ये सब लालच में किया था। जिस वकील के पास तुम्हारे अब्बा जाते वो इसी शख्स का बाप था और तुम्हारी बहन कुछ भी नहीं जानती थी। वो इस शख्स के हाथों ब्लैकमेल होती गई और इस दिन घर से भाग गई। और जब उसने जायदाद की बात की तो उस दिन पता चला सब कुछ जवेरिया के नाम है, क्योंकि तुम्हारे अब्बा मरने से पहले सब तुम्हारे नाम पर कर गए थे। इस लड़के को था कि एक बहन को अपनी रखेल बना लूँगा और दूसरी जो बीवी है और ऐसे करोड़ों की जायदाद उससे मिल जाएगी। अब इस लड़के ने तुम्हें तुम्हारी तस्वीर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और घर पर भी तुम्हारी तस्वीर अपने साथ एडिट करके भेजी थी
और इस दिन मुझे लगा था शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वो तुम्हारे नंबर पर कॉल करता और तुम घबरा जाती, नंबर बंद कर देती, मैं सबसे अनजान नहीं था और फिर तुम्हारे मोबाइल से इस शख्स का नंबर लिया और एक दोस्त की मदद से इस तक पहुंचा। जिस दिन चचा की डेथ हुई उससे अगले दिन तुम्हारी बहन का मुझे फ़ोन आया था। वो माफ़ी मांग रही थी। उसने कहा इस लड़के ने धोखा दिया। वो मुझे कहता है कि मैं जाकर अपने बाप से अपना हिस्सा लूं, पर अब्बा ने तो बहुत पहले सारी जायदाद जवेरिया के नाम कर दी थी। इस शख्स ने उससे नहीं रखा, ना उससे शादी की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और वो लड़का अब जेल में है। वो पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी ने उस पर केस कर दिया अपने बच्चों का, और इसकी बीवी ने मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो सच कह रहा है या झूठ। तब मेरे शौहर ने कहा, चचा जान ने एक बार मुझसे कहा था, अध्ययन कभी मेरी बेटी को दुख मत देना। इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप की इज्जत रखी है। वो तुम्हारी भी इज्जत है। सब कुछ भूलकर जवेरिया को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की खातिर सर झुका देती हैं वो बहुत पाकबाज और मोहब्बत करने वाली होती हैं। मेरे शौहर ने अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी थी। अब्बा ने सही कहा था, अध्ययन बहुत अच्छा है जिसने मेरे कहे बिना सब कुछ संभाल लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरी बहन घर आई पर किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया था और घर से निकाल दिया था। वो अब दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे जब मैं उम्मीद से हो गई। ताई जान का रवैया भी बदल चुका था। सब मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे दिल में जो गिले शिकवे थे सब मिट चुके थे। मेरे घर में नन्ही सी परी ने जन्म लिया। मेरा शौहर खुशी के मारे रो रहा था। वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ और बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 3 बच्चे थे और पहली औलाद मेरी बेटी थी। जब वो पैदा हुई तो हम सब बहुत खुश थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बिला वजह अपने भाइयों को मारने लग जाती, हमसे भी गुस्से से बात करती। माँ बेटी तो सहेलियाँ होती हैं, पर वो हम सबसे दूर होती जा रही थी। जब जब पूछती वो कहती, मामा आप क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। पता नहीं क्यों वो हम सबसे जान छुड़वाने लगी। जब एक दिन हमारे घर मेरी बेटी का रिश्ता आया, हमने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी हमारी बेटी पढ़ रही है और इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते, और वो लोग चले गए। पर बात यही ख़त्म नहीं हुई थी। वो लोग बार बार आने लगे, यहाँ तक कि धमकियों पर उतर आए थे। और जब इन लोगों की छानबीन की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा माजी इतने सालों बाद फिर से मेरे आगे आ गया था। मेरी 21 साला बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती पेट पकड़ कर रोती, कहती पेट में दर्द है। मैं अगर डॉक्टर के चलने का कहती तो मना कर देती। मुझे कुछ शक हुआ तो अपनी दाई दोस्त को बुलाया। मेरी बेटी का चेकअप करके वो अपना सर पकड़ गई और बोली, इसकी शादी आज ही मेरे 10 साला बेटे से कर दो, वरना ये मर जाएगी। मैं डर गई और उसकी शादी कर दी। और हैरत हुई जब वाकई वो सही होने लगी। तजस्सुस के हाथों मजबूर रात मैंने बेटे के कमरे में झांका तो जान निकल गई, क्योंकि वो 10 साला बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो वही लड़का था जो मेरी बेटी का हाथ मांगने आता रहा। और वो इसी शख्स का बेटा था जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़राब करना चाही थी। मुझे मेरे शौहर ने भी समझाया था, अपनी दोस्त के बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पर मैं जिस पर एतबार करती वही मुझे धोखा देता था। मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगी, अम्मी मैं नुमान को पसंद करती हूँ, इस वजह से ये सब किया था, हमें माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा, बिल्कुल अपनी खाला पर गई हो, उसने भी अपने माँ बाप को ऐसे ही धोखा दिया था। और इस लड़के का बाप वो तो ऐसा नाग है जो डसना कभी नहीं भूलता। और मेरा शौहर, उसे जब सब पता चला तो उसने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आपको आपका प्यार नहीं मिल सका, इसका बदला मुझसे क्यों ले रही हैं। खाला सही कहती हैं, आप दूसरों के हक पर डाका डालती हैं। और मेरे शौहर ने उसे थप्पड़ मारा था और इन दोनों को घर से निकाल दिया। मैं सारा दिन रोती रहती। मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं, क्योंकि हमारे हालात बहुत बदल चुके थे। जिस घर में कभी बाइक नहीं होती थी, आज उसी घर में गाड़ियां खड़ी थीं। और ये सब नसीब का होता है। पर मेरी बहन समझ नहीं सकी और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी टांग चली गई। मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत करते थे, वरना न जाने क्या हो जाता। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया था
کہ वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। इसने मोहब्बत में ये सब कुछ किया क्योंकि इन लोगों को रिश्ते से इनकार कर चुके थे, और इस तरह मेरी बेटी और इस लड़के ने मिलकर प्लान बनाया और मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो भूल गई थी चाहे कुछ भी हो जाए माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। और पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी रोते हुए वापस अपने बाप की दहलीज पर आई। कहने लगी, मामा मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गई थी। खाला ने सब झूठ कहा आपके बारे में, मुझे माफ़ कर दें। उसे इसके शौहर ने तलाक दे दी थी और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मेरे शौहर ने कहा था मेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हमारी बेटी से भूल हो गई, निकाह करके गई। माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है, चाहे जैसी भी हो। औलाद को माफ़ करना पड़ता है चाहे कैसे भी हो। पर औलाद को भी एक बात याद रखनी चाहिए, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को जन्म दिया होता है, इतने साल इनके लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी होती हैं, इनके माँ बाप का इन पर सबसे ज़्यादा हक होता है। बाहर से आकर कभी कोई आपसे ये कहते कि वो आपसे मोहब्बत करता है तो कभी यकीन मत करें, क्योंकि अब मोहब्बत कोई नहीं करता, सब दिल बहलाते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। खुद को दूसरों के हाथों से इस्तेमाल होने से बचाएं। मेरी सास की एक आदत बहुत मशकूक थी। वो हर रात 12 बजे मुझे उठाकर अपने कमरे में बुला लेती और दूध का गिलास पीने को देती। मुझे बहुत गुस्सा आता जब रोज़ आधी रात को नींद खराब होती, मगर हैरत थी 5 मिनट में ही मैं सो जाती। जब उठती तो मेरे हाथों पर सुर्ख रंग लगा होता। मुझे बहुत अजीब लगता। एक रोज़ मैंने दूध बेड के पीछे गिरा दिया, मगर जैसे ही 20 मिनट गुजरे जान निकल गई। जब सास को अपने साथ, मेरा नाम मलिहा है, मेरा ताल्लुक चकवाल से है, हम 2 बहनें हैं, एक हमारा भाई है। मैं मैट्रिक में थी जब मेरी चाची ने मेरा रिश्ता अपने बेटे जुबैर के लिए मांग लिया। वो उम्र ऐसी होती है कि आपको पता नहीं होता जो फैसला आप कर रहे हैं सही है या गलत है। लाउबाली सी तबीयत में मैं खुश रहने वाली और ख्वाब देखने वाली लड़की, जिसे लगता था किताबें तो बोझ हैं और पढ़ाई तो है ही सरदर्द। मेरी माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ था। उन्हें लगता था कि शादी ज़रूरी नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। और फिर वो चाची की हरकतों और नेचर से वाकिफ़ थी, लेकिन अब्बा ने भाई की मोहब्बत में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी शादी जुबैर से हुई तो लगने लगा मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला शौहर था। मुझे ये लगता कि जुबैर के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। जुबैर को दफ्तर से 1 हफ्ते की ही छुट्टियाँ मिली थीं। 1 हफ्ता शादी की दावतों में गुजर गया। कल से जुबैर ने दफ्तर भी जाना था, इसलिए उन्होंने बोला, मलिहा चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अम्मा अब्बा से मिलना था। मैंने और जुबैर ने कुछ वक्त वहाँ गुजारा। वापसी पर जुबैर ने कहा कि हम किसी होटल से खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक कार तेज़ रफ्तारी से हमारे पास से गुजरी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। जुबैर बोले, आजकल लोगों को गाड़ियाँ चलानी नहीं आती, लेकिन सड़कों पर लेकर निकल आते हैं। मेरा शौहर इस कार वाले को और भी कुछ कह रहा था, लेकिन मैं इस कदर डर गई थी कि 2 सेकंड भी अगर मैं खड़ी रहती तो यकीनन जिंदा ना होती। इस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। जुबैर की छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो दफ्तर जाने लगा। मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती, बाहर निकलने और इन लोगों के साथ बैठने को दिल ही न चाहता। इसकी एक वजह तो मेरी सास की अजीब सी नज़रें थी, जैसे एक्सरे कर लेती हूँ आँखों से। मेरी नंदे भी कुछ कम न थी, बहुत ही बेबाक किस्म के मजाक करती थी। मैं शर्म के मारे इन लोगों के साथ ही बैठना छोड़ दिया। हमारे घर के माहौल और इन लोगों के घर के माहौल में बहुत फ़र्क था। हमारी वालदा तो इतनी बेबाकी और फैशन पर हमारा जीना तंग कर देती थी, लेकिन हमारी चच्ची तो खुद बहुत फैशनेबल और अजीब फितरत की औरत थी। लगता नहीं था कि जवान बच्चों की माँ है। मेरी अक्सर सहेलियाँ कहती थीं कि तुम्हारी सास कम और तुम्हारी नंद ही लगती है। मेरी सास की मेरी सहेलियों से भी बहुत जल्द दोस्ती हो गई। वो सब मेरी सास के गुण गाती थी, लेकिन मुझे वो सब कोई ढोंग लगता था। एक दिन मेरी बड़ी नंद अपने शौहर के साथ घर आई हुई थी। उसने अपनी वालदा को कहा, मेरी छोटी बहन भी बड़ी हो गई है, मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है, घर बहुत अच्छा है,
खाने पीने वाले लोग हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है, सरकारी मुलाजमत करता है और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी बहन की शादी मैं अपने करीब ही कर दूँ। मेरी सास ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। हम भी वो घर देख आए थे और हम सबको बहुत खुशी हुई। मेरी छोटी नंद ब्याह कर अपने घर गई तो उसका दूसरा दिन था। मैं शादी के हंगामों की वजह से बहुत थक चुकी थी, लेकिन खुश भी थी कि चलो मेरे शौहर के सर से एक जिम्मेदारी तो कम हुई। जब मेरी सास कमरे में आई, उसने कहा अब कमरे की जान छोड़ भी दो, कोई कामकाज कर लो। मेरी बेटी क्या गई, सुबह से किसी ने चाय तक नहीं पूछी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं चुपचाप उठी और कामकाज करने लगी। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। घर की सफाई करने के बाद मैं थक चुकी थी, लेकिन खाना बनाना बाकी था। मैं सारे काम कर लेती थी, लेकिन इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया था। मुझे डर लग रहा था कि कैसे सब करूं। एक ही लोग खाने में नुक्स बहुत निकालते थे। वही हुआ था। खाने पर सबको ही मेरी नंद याद आ गई, जो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मेरे ससुर भी कहने लगे कि इससे अच्छी दाल रोटी तो जेल में कैदियों को मिल जाती है, ये खाना है। और सब बारी बारी बातें सुनाकर खाना छोड़कर चले गए। और यूँ मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी सास मुझ पर सख्ती करती रही। ऊपर से जुबैर, जो मुझे भूल ही चुका था, मेरा शौहर था। मुझे ज़रूरत थी कि वो कम से कम मुझे तसल्ली तो दे कि मेरे साथ है। वो भी शाम को आता और मुझे ही डांटने लगता था। अभी शादी को 3 माह ही हुए थे कि मेरी ज़िंदगी के हालात हो गए थे। मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त और तेज़ लोग हैं। मेरा शौहर भी माँ की बातों में आ जाता है, मेरी सुनता नहीं। मेरी नंद खूबसूरत थी और उसका शौहर बदसूरत था, रंग भी काला था। मेरी सास ने दौलत देखी थी और लड़के की नौकरी देखी। मेरी नंद ने जब अपना शौहर देखा तो उसने चलाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। अपने माँ बाप को कहा कि मेरे लिए यही रिश्ता मिला था, मेरे नसीब बर्बाद कर दिए हैं। मेरा क्या कसूर था, मेरे लिए कोई गरीब ढूंढ लेते, लेकिन लड़का तो खूबसूरत होता। इसने कहा कि वो इस बदसूरत शख्स के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तो उसके माँ बाप उसको समझाने लगे कि ऐश करोगी, इतनी दौलत है, दौलत हो तो हर ऐब भी छुप जाता है। लेकिन उनके झगड़े रहने लगे। मेरी नंद जुबान चलाती और उसका शौहर उसे मारने पीटने लगता। अक्सर लड़कर मैके आ जाती। मेरी सास समझा बुझा कर भेज देती। मेरे ससुराल वाले जादू वगैरह में दिलचस्पी रखते थे। मेरी नंद ने अपने घर वालों पर जादू करवाना शुरू कर दिया कि ये लोग खुद मुझे वहाँ से ले आएं और मेरी तलाक करवा दें। हक महर में लिखी 50 लाख की रकम भी हाथ से न जाए। तवीज़ पिला पिलाकर उसने सबको अपना मुरीद बना लिया था। अब वो हर बात अपनी बेटी की मानते। जो कल तक उसे समझाते थे कि अब इसकी जान छुड़वाने के लिए उसके शौहर पर खुला का केस कर चुके थे। मेरी नंद मेरी भी दुश्मन बन गई थी कि मैं इस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ये यहाँ ऐश कर रही है। उसने मेरे कमरे में एक ख़त रख दिया। मुझे नहीं पता वो ख़त कहाँ से आया था। उसने अपने भाई के वापस आते ही फसाद डाल दिया और अपने भाई को कहा कि तुम्हारी बीवी किसी को ख़त लिखती है और ख़त में लिखती है कि इसको रोज़ इसका शौहर मारता है। मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे माँ बाप बहुत शरीफ और अच्छे हैं, तुम्हारी गलतियों को भी दरगुजर करते रहे। मेरे बाप ने अपने भाई की मोहब्बत में तुम जैसी लड़की को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। मैं हैरान थी, कौन सी मेरी हरकतें क्या करती थी मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे कभी बहू समझा नहीं, तुम लोग तो मुझे एक नौकरानी समझते हो। मेरी सास कहने लगी, हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझते थे, लेकिन तुम तो अपने शौहर की भी वफादार नहीं हो। इसकी ज़िंदगी अजाब में गुजार रही थी। हमें तो अब पता चला है तुम अभी तक अपने पुराने चक्रों से निकली नहीं। ये झगड़ा मेरी ज़िंदगी का अजाब बना हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रही थी। आए दिन मेरे शौहर के हाथों मुझे मार पड़ती थी। कभी मेरी नंदे मुझे बातें सुनाती, बदचलन कहती और कभी सास मारती और अक्सर खुद तमाशा देखती, अपने बेटे से बेइज्जत करवाती। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होती जा रही थी। मेरे ससुर जो मेरे चाचा थे वो भी किसी काम के नहीं थे। उनको पता भी था कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मगर वो अपनी बीवी का ख्याल करते थे। उनको अपनी भतीजी का ज़रा भी ख्याल न था। उल्टा वो मुझे कहते कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे अब्बा दिल के मरीज़ थे, मैं घर पर कुछ भी नहीं बता सकती थी और फिर मैं कैसे कुछ कहती। मुझे डर लगता था मेरे घर वाले भी इस सब को सच ही न समझ लें। इसी वजह से मेरी बेकदरी हो रही थी। मेरा शौहर ससुराल वाले समझ चुके थे कि हम जो भी करेंगे कोई पूछने वाला नहीं। महीनों के बाद मैं अपनी माँ बाप को मिलने गई
تو मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या सलूक होता है। जो भी माँ बाप ने पूछा मैंने कहा मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने गिला नहीं किया अपने ससुराल वालों का, अपने माँ बाप के घर ही थी। तो एक दिन मैं अपने सर पर तेल लगा रही थी जब मेरी माँ की नज़र मेरे बालों पर पड़ गई। माँ ने देखा मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे। माँ ने कहा तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे, इतने छोटे क्यों करवा लिए। मेरे हलक में आंसू का गोला फंस गया था। मैं कैसे बताती कि ये बाल कुछ दिन पहले मेरी नन ने मुझसे झगड़ा करके बुरी तरह काट डाले थे। उन्हें तो मेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं था। कहने को अपने थे लेकिन दुश्मनों से भी बुरा सलूक होता था मेरे साथ। मेरी माँ ने मेरी गर्दन पर लगे निशान भी देख लिए जो मेरे शौहर ने मुझे घसीटा था, तो दुपट्टे के मोती मेरी गर्दन को जख्मी कर गए थे। एक हाथ भी जख्मी था। माँ ने जब ये हालत देखी तो माँ तड़प गई। माँ रोने लग गई कि बेटा ये क्या हुआ है, इतने जख्म किसने दिए। मैं भी थक चुकी थी। मैंने माँ को मजबूर होकर सब कुछ बता दिया। मेरी बहन भी पास ही सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा कि तुमने चाचा को सब कुछ क्यों नहीं बताया। मैंने कहा इनको भतीजे का इतना ख्याल होता तो मुझ पर जुल्म ही क्यों होता। जब अब्बा ने सारी बात सुनी तो चाचा को कॉल की। उन्होंने टाल मटोल कर दी। मुझे आए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरी सास ने अब्बा को कॉल की। उसने मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी बेटी का इधर चक्कर है किसी लड़के के साथ और ये इसको मिलने आती है। मैंने खुद देखा है। इसने ख़त भी लिखा था जो इसके शौहर ने भी पढ़ा। इसके शौहर ने हम सबको बताया। मेरे घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। अब्बा को भी यही लगा कि उनकी भाई की फैमिली क्यों जुल्म करेगी। वो तो इतने चाव से ब्याह कर लेकर गए थे। घर वाले भी मुझे ताने देते, बुरा भला कहते। हालांकि मैं एक शरीफ औरत थी, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। मेरे शौहर ने भी मुझे पलट कर ना पूछा। इस वक्त मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं जानता ये बच्चा उसका है भी या नहीं। मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता की, मगर मेरा शौहर अपनी बेटी से नफरत करता था। वो तो पहले ही कह चुका था कि ये बेटी मेरी नहीं है। मुझे मैके में 5 माह हो गए थे। मेरा शौहर अपनी बेटी को देखने तक ना आया। फिर बरादरी के कुछ लोगों ने अब्बा से और चाचा से कहकर मुझे फिर से इसी जहन्नुम में भेज दिया। मेरा शौहर मुझसे भी नफरत करता, बात बात पर लड़ने लगता। जब मार मार कर थक जाता तो कहता बताओ ये किसकी बेटी है। मैं कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पर इल्ज़ाम है, मगर वो एक न सुनता, जुल्म की इंतहा कर देता। मैं जुल्म बर्दाश्त करती रही। 1 साल गुजर गया था। मैं एक और बच्ची की माँ बन चुकी थी, मगर मेरा शौहर अपनी बच्चियों से ज़रा भी प्यार न करता। वो समझता था कि ये बच्चे किसी और के हैं। यही वजह थी कि उसके दिल में नफरत थी मेरे लिए और अपनी बेटियों के लिए। मैं जुल्म सह सह कर अब थक चुकी थी। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह मेरे शौहर ने बहुत मारा किसी बात से और कहा कि मैं किसी दिन तुम्हें जान से ही मार दूंगा और इन बच्चियों को किसी यतीम खाने में दे आऊँगा। मैं बहुत डर गई। मैंने फैसला कर लिया दिल में कि आज मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। जब रात का वक्त हुआ मैं अपने कमरे से निकली। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को उठाया और चुपके से घर से निकल गई और खुदा से दुआ कर रही थी कि या खुदा मेरी हिफाजत करना कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं छुपते छुपाते जा रही थी। अभी आधी रात हुई होगी। गांव अभी दूर था। मैंने रिक्शा लिया और अपनी सहेली के पास गांव आ गई और उसके घर वालों को कहा कि मैंने कुछ दिन यहाँ रुकना है, मैं मुसीबत में हूँ। तो वो लोग अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। इधर मेरे ससुराल वाले मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उनको खतरा ये था कि कहीं मैं खुदकुशी न कर लूँ, मुझ पर कहीं कत्ल का इल्ज़ाम ना आ जाए। मुझे डर भी था कि कहीं मेरा शौहर ढूंढता पीछे ना आ जाए। मैंने घर राब्ता किया। मेरी माँ मेरी आवाज़ सुनते ही रोने लगी थी। उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा कि जैसे भी करके तुम घर आ जाओ, तुम्हारे अब्बा और भाई को मैं समझा लूँगी। मेरा शौहर और ससुराल वालों ने मेरे बाप और भाई को भी मेरे खिलाफ कर दिया था कि मैं घर से भाग गई हूँ। सारे ख़ानदान में मुझे बदचलन कह रहे थे। मैंने अपनी सहेली से बात की और उसने मशवरा दिया कि भागना कोई हल नहीं है। ये बच्चियां बड़ी होकर क्या सोचेंगी, इनका ख़ानदान कौन सा है, ये तो अपनी पहचान खो देंगी। तुम बहादुर बनो, अपनी बच्चियों की खातिर सबसे लड़ जाओ, डट के मुकाबला करो। कौन सा चोर हो या तुम पे कोई लगाए के इल्ज़ाम सच है, तुम बाकिरदार हो। मैं घर वापस आ गई। मेरी माँ ने मेरे बाप और भाई को सब कुछ बताया। मैंने कसम भी खाई और अपनी सहेली से बात भी करवाई कि मैं इतने दिनों से उनके घर पर रह रही थी। मेरे वालिद और मेरे भाई को मेरी बेगुनाही पर एतबार आ गया था। मेरे लिए यही बहुत था।
मुझे यहाँ रहते 2 माह हो गए थे। मेरे भाई ने कहा तुम तलाक ले लो, लेकिन मैं तलाक याफ्ता कहलवाने के डर से और अपनी बच्चियों की वजह से चुप थी। खानदान वाले सब कहने लगे थे कि तुम जवान हो, छोड़ दो जुबैर को, तुम्हारी कदर नहीं की, तुम आगे का सोचो, अपना और अपनी बच्चियों का सोचो। एक दिन खानदान के बड़े जमा हुए जिसमें मेरी किस्मत का फैसला हो रहा था। बरादरी के सब मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हो गए, मेरे ससुराल वाले भी आ गए थे। एक बुजुर्ग ने मेरे शौहर से कहा कि तुम अपनी बीवी से रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं। मेरे शौहर से पहले ही मेरे ससुर ने कहा कि हम मजीद रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम इस बदचलन को अपनी तरफ से तलाक देने के लिए आए हैं और यही हमारा आखिरी फैसला है। बुजुर्ग ने उनको समझाया कि तुम लोग तलाक ना दो, 2 बच्चियां हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो माँ के पास रहेंगी तो बाप को तरस जाएंगी, अगर बाप के पास रहेंगी तो माँ को तरस जाएंगी। मेरे शौहर से कहा तुम घर बसा लो, मगर मेरे सास और ससुर नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा आखिरी फैसला है, हम ये घर नहीं बसाना चाहते हैं, हमारी तरफ से तलाक के कागज़ बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। फिर बुजुर्ग ने जुबैर से पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला कि अगर ये लोग मेरी तलाक याफ्ता बहन का रिश्ता अपने बेटे से कर दें तो मैं इनकी बेटी को बसाने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर वालों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मेरे वालिद ने कहा कि उनका बेटा तो अभी पढ़ रहा है और उनका ख्वाब है उसे बड़े ओहदे तक पहुँचाने का, वो इसकी अभी से शादी करके उसे मुसीबत में नहीं डाल सकते। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाओ तो बच्ची का घर बस जाएगा और बच्चियों की ज़िंदगी भी तबाह होने से बच जाएगी। तब मेरी सास बोली कि शादी नहीं कर सकते तो निकाह कर दें, जब लड़का नौकरी लग जाएगा तब रुखसती कर देंगे। बुजुर्ग ने मेरे वालिद की तरफ देखा जो मेरे भाई को देख रहे थे। इस दिन मेरे भाई ने कहा था कि मैं अपनी मजलूम बहन और मासूम भांजियों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे जुबैर की बहन से शादी पर एतराज़ नहीं, ये लोग गैर नहीं हैं, मेरे वालिद का ख़ानदान है, लेकिन जुबैर को लिख के देना होगा कि ये अपना घर मेरी बहन के नाम पर रजिस्ट्री करवाए और ये कभी भी मेरी बहन पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन मेरे सास ससुर ने कहा वो घर सिर्फ जुबैर का तो नहीं, सब भाइयों का है, वो सिर्फ जुबैर की बीवी के नाम कैसे कर दें। और वो लोग चले गए। मेरे घर वाले समझ गए थे जुबैर घर बसाना भी चाहे तो उसकी माँ घर बसने नहीं देगी। मेरे भाई ने कहा कि हम तलाक ले लेते हैं और तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। मैंने कहा खुदा ने मुझको 2 बेटियां दी हैं, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बेटियों के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि ये कोई मेरी आजमाइश ही थी। 25 साल की उम्र तक मैं ज़िंदगी इतनी जी चुकी थी और रिश्तों ने ऐसे सबक पढ़ाए थे कि अब मुझे रवैये समझ आने लगे थे। मैंने अपनी बच्चियों की खातिर जीने का सोच लिया था, उन्हें एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। दोनों ही मुझ पर गई थी, साबिर और शाकिर। मुझे ज़रा भी परेशान न करती, मेरा ख्याल रखती। मैं उन्हें खुद छोड़ने जाती और लेने जाती। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि जुबैर की शादी हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था। जुबैर एक ऐसा शख्स था जिसने फैमिली की खातिर हमेशा सब कुछ किया, लेकिन इसी फैमिली ने उसकी फैमिली उससे दूर कर दी थी। लेकिन वो ये बात समझ नहीं सकता था। उसे लगा था उसकी माँ और बहन ही दुनिया की पारसा औरतें हैं और इन पारसा औरतों के कहने पे उसने अपनी बीवी को बदचलनी का सर्टिफिकेट देकर घर से बेघर कर दिया था। बड़ी बेटी मेरी 5 साल की और छोटी 4 साल की थी। मुझे घर से निकले 4 साल हो गए थे। सब लोग कहते थे तुम तलाक लो और शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मुझे जुबैर की वो मार भी याद थी जो मुझे अपनी माँ और बहन के कहने पर मारता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गवारा नहीं कर सकती थी कि मेरे नाम के साथ अब फिर से किसी और मर्द का नाम जुड़े। मेरे भाई की शादी हो गई, एक बेटा था। मेरी भाभी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी खाला की बेटी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मेरे भाई के अच्छे कामों का सिला थी, एक रहमत थी हमारे घर के लिए। उसने सबका बहुत अच्छा ख्याल रखा था। सबसे बड़ी बात जो अक्सर लड़कियां आके अपने शौहर पर सिर्फ अपना ही हक समझती हैं, जिन्हें लगता है कि निकाह नामे की जगह उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से शादी कर ली है, शौहर अब सिर्फ उनका है, उसके खानदान वालों का इस पर हक ही नहीं। मेरी भाभी इन लड़कियों में से नहीं थी। वो बहुत ही सुलझी और मोहब्बत करने वाले हसास दिल रखती थी। मेरी छोटी बेटी तो रहती उसके पास थी। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था, मुश्किल भी था तो अपने लोगों ने लगने नहीं दिया था। एक दिन मैं बच्चियों को स्कूल से लेने गई तो क्या देखा कि जुबैर स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, चौकीदार से लड़ रहा था। मैंने जाकर पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी माँ और बहन की बातों में आ गया और तुम्हें ही इतने सालों तक गलत समझता था, अपनी बच्चियों से दूर था। मुझे कल ही पता चला कि मेरी माँ और बहन ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मेरे माफ़ करने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ कम हो जाएगा तो जाओ, माफ़ किया, लेकिन मेरी बच्चियों के पास भी नज़र मत आना। इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये सिर्फ मेरी बेटियां हैं जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से पाला और संभाला है। जुबैर रो रहा था और हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था। लोग इस शख्स को अजीब नज़रों से देख रहे थे जो एक औरत के सामने रहम की भीख मांग रहा था। जुबैर ने कहा, मेरी माँ ने मेरी शादी एक ऐसी औरत से कर दी है जो मुझे तबाह कर गई। वो एक आवारा औरत थी, मुझसे पैसे लेकर अपने पहले शौहर और बच्चों को खिलाती रही। जब मुझे पता चला तो उसने कहा उसने ये शादी सिर्फ हलाले के लिए की थी, उसे अब तलाक चाहिए। 2 माह पहले ही वो मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास लौट गई। जिस बहन की खातिर मैं तुम पर हाथ उठाता था, उसने मुझे बताए बगैर ही अपने अमीर शौहर से सुलह कर ली और वापस चली गई, जिसके खिलाफ केस करने पर मेरा वक्त और पैसा बर्बाद हुआ था। और उसने जाते हुए मुझे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं अकेला हो चुका हूँ, तुम्हें अकेला करने की बहुत सजा पाई है मैंने। छुट्टी हो गई थी, बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे थे जब मेरी बेटियां एक दूसरे का हाथ पकड़े मुझे अपनी तरफ आती नजर आईं और एक अजनबी को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते रोते देख रही थी। मेरी बड़ी बेटी ने पूछा, माँ ये कौन है? मैंने जुबैर को देखा जिसकी आंखों में रहम की इल्तिजा थी। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कौन है, और अपनी बच्चियों को लेकर वहाँ से आ गई। घर आकर बहुत दिनों तक मैं परेशान रही। मुझे डर लगने लगा था कहीं जुबैर बच्चियों को स्कूल से अपने साथ ना ले जाए। मैंने स्कूल में फ़ोन करके उनसे कह दिया कि मेरे अलावा किसी के साथ बच्चियां न भेजें, लेकिन मैं स्कूल में नहीं थी। एक दिन मैं बच्चियों को लेने गई तो देखा बच्चों के पास नए बैग और नए खिलौने थे। चौकीदार ने बताया कि एक साहब थे और कहा था कि वो उनके वालिद हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, बच्चों तक पहुंचा दूं। मैंने बच्चों को देखा जो बेहद खुश थे। मैं चुप हो गई और घर आ गई। 4 साल बाद मैंने जुबैर को फ़ोन किया और कहा कि मैं अपनी बच्चियों को सब कुछ दिला सकती हूँ। तुम्हारे इन एहसानात की मुझे और मेरी बच्चियों को ज़रूरत नहीं, इसलिए आइंदा ऐसा कुछ मत करना। उसने कहा कि सजाए मौत से पहले भी मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। एक मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कुछ गलतियों का मदावा नहीं होता, मुझे 5 साल लौटा दो और मेरी बच्चियों का वो बचपन लौटाओ जब ये अपने बाप के लिए पूछती थी। लोगों के बच्चों के पापा हैं, हमारे क्यों नहीं हैं? जब जब मैं छोड़ने जाती थी स्कूल तो बच्चों को हसरत से देखती थी कि कैसे गाड़ियों से उतरते हैं बच्चे, और मेरी बच्चियां पैदल चल के स्कूल जाती थी। और जब वो ये सब कुछ सह गई, आदी हो गई, तो अब तुम इनकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हो। जुबैर ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि वो अब स्कूल उनसे मिलने आने लगा था, उन्हें खर्चा देने लगा था, और रोज़ ही उनके हाथों में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें होती। अक्सर घर पे कुछ ना कुछ आने लगा था। मेरी बड़ी बेटी कहती, माँ आपने हमें बताया क्यों नहीं? बाबा बाहर के मुल्क से वापस आ गए, हम लोग कब घर जाएंगे? एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया कि जुबैर बच्चों से मिलने लगा है। मेरे वालिद कुछ कहते इससे पहले ही एक दिन वो घर पर आ गया। मेरे अब्बा अम्मा के पाँव पड़ गया कि मैं गलती पे था, मुझे माफ़ कर दें। मेरे भाई ने उसे धक्के देकर निकालना चाहा, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया और कहा कि जब उसे एहसास हो गया है तो एक मौका देना चाहिए, और मुझे कहा कि बच्चियों की खातिर तुम इसे माफ़ कर दो, और मेरी एक भी सुने बगैर मुझे फिर से उसी घर में भेज दिया। सब लोग बज़ाहिर तो खुशी हुए थे, लेकिन मेरा उनसे मिलने को दिल नहीं चाहता था। मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया, अपनी और अपनी बच्चियों के काम करती और अपने कमरे में आ जाती। जुबैर हमारा बहुत ख्याल रखता था, शाम को बच्चों को घुमाने ले जाता। बच्चियां भी यहाँ आके बहुत खुश थीं। जब कहती नाना के घर जाना है तो उन्हें वहाँ से भी मिलवा लाता। मैं भी अब पिछली बातें भूलकर जुबैर से अपना रवैया ठीक कर चुकी थी जब एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी सास की एक आदत बहुत मशकूक थी। वो हर रात 12 बजे मुझे उठाकर अपने कमरे में बुला लेती और दूध का गिलास पीने को देती। मुझे बहुत गुस्सा आता जब रोज़ आधी रात को नींद खराब होती, मगर हैरत थी 5 मिनट में ही मैं सो जाती। जब उठती तो मेरे हाथों पर सुर्ख रंग लगा होता। मुझे बहुत अजीब लगता। एक रोज़ मैंने दूध बेड के पीछे गिरा दिया, मगर जैसे ही 20 मिनट गुजरे जान निकल गई। जब सास को अपने साथ अजीब मंतर पढ़ते देखा, वो कुछ पढ़ रही थी
और बेड के गिर्द चक्कर काट रही थी। मैंने आंखें खोल दी। मेरी सास हैरान रह गई और कहने लगी, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम अब मेरे बेटे को छोड़ कर न जाओ, लेकिन मैं जानती थी ये सच नहीं था। मैंने अपने शौहर को बुलवा लिया। मेरे ससुर भी वहीं आ गए। मेरी सास मेरी मिन्नतें करती रही कि उन्हें कुछ ना बताऊं, लेकिन मैंने उन सबको सब कुछ बता दिया। मेरे शौहर ने कहा, माँ मैं नहीं जानता क्या दुश्मनी है मुझसे या मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, क्यों इनके पीछे पड़ गई हैं। और अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि आप मेरी बीवी को नींद की गोलियाँ देकर इस पर चिल्ला करती हैं, जादू करवाती हैं कि इस घर से फिर से चली जाए। आखिर इसने बिगाड़ा क्या है आपका? अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बता दें, मैं इसे और अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाता हूँ। मेरे ससुर ने कहा कि मैं सारी उम्र इसे समझाता रहा, लेकिन इसने मेरी नहीं मानी। लेकिन अब इसे मैं इसी शर्त पर रखूँगा, अगर ये अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो तलाक दे दूँगा। मेरी सास मेरे ससुर के पाँव पड़ गई कि उसे तलाक ना दे, नहीं तो बुढ़ापे में वो दरबदर हो जाएगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कहा कि जिससे जादू करवाया है उसका पता बताओ। इसी वक्त मेरे शौहर ने पुलिस से कहकर उस आमिल को पकड़वा दिया, जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी इस जादू के असरात से तबाह कर चुका था। ज़ुबैर अब रोज़ाना मुझ पर आयात पढ़ के दम करता। कुछ दिन मैं बीमार रही थी, लेकिन फिर जल्द ही मैं ठीक हो गई। ज़ुबैर और मेरे ससुर अब मेरी सास को अकेले जाने न देते और ना ही इस पर भरोसा करते थे। वो अपनी ही हरकतों की वजह से घर वालों की नज़रों में गिर गई थी। इसकी बड़ी वजह वो नफ़रत थी जो मेरी चाची को मेरी माँ से थी। सारा ख़ानदान मेरी माँ की तारीफ़ें करता था, मेरी चाची को यही बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा ही मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता।